Good morning, dear students. My name is Sudesh Shukla. I used to teach a subject, electronics devices. Electronics devices. Dear students, hope you are well now these days. Dear students, everyone is fighting in these days with the disease. You all know, you are aware of it. But still, we have not to stop. We have to move forward while fighting with the scenario which is in existing. So let's start for today's discussion. Today we will cover the topic indirect recombination. Dear students, we have started with the topic generation and recombination of charge carriers. And I hope you remember that what type of charge carriers we are in consideration in our subject electronic devices. Dear students, पिछले डिस्कशन में we have covered the direct recombination of charge carriers. I have told you that how the carriers recombine directly, and that recombination was also called band-to-band transition. Dear students, along with direct recombination, we have also covered the topic calculation of carrier lifetime. Of whom? Of the charge carriers we are in consideration. हमने कैलकुलेट किया कि किस प्रकार से कैरियर लाइफ टाइम को कैलकुलेट करेंगे हम. What is the carrier? What is the formula? What is the equation for carrier lifetime? And I have also told you, I hope you remember my words, कि अगर कैरियर लाइफ टाइम की बात करते हैं, दैट मीन्स वो दौर, वो ड्यूरेशन, वो टाइम इंस्टेंट जब चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं एंड टिल देयर रिकम्बिनेशन, जो वो ड्यूरेशन होता है, एंड दैट ड्यूरेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. उस दौर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, एंड दैट टाउ बेसिकली डिनोट्स और रिप्रेजेंट्स the time of the charge carriers while they are generated until their recombination. And I have also formulated, we have derived the formula for that carrier lifetime, and that is nothing but 1 upon alpha r n naught plus p naught in bracket. So dear students, I hope you remember I have written tau n is equals to 1 upon, tau alpha r n naught plus p naught. This was our formula for the carrier lifetime. और मैंने आपको बताया था कि जनरल वे में हम कैरियर लाइफ टाइम टाउ को इस प्रकार से लिखते हैं, वेयर अल्फा आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. डियर स्टूडेंट्स, n is the concentration of electrons, p is the concentration of holes. Or generally, if we are taking n type of silicon material, अगर हम n type semiconductor material की बात करते हैं, in that we have to eliminate this p naught, because in n type semiconductor this p will be the minority charge carriers. Their concentration will be much low, so that we have to eliminate this p naught term, and we have only 1 upon alpha r n naught. And if we are taking p-type semiconductor, we are talking about the p-type semiconductor material, in that situation we have to eliminate this n naught, because in p-type extrinsic semiconductor the electron will be in minority, and comparably to majority charge carriers we eliminate the minority charge carriers. और p type के केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 upon alpha r p naught. So this was the discussion for the calculation of carrier lifetime. I hope
you all come to understand that how I have derived this equation. And I have also told you that if you have any type of doubt regarding any of the steps or the diagram which I have drawn, you can directly ask to me with any of the medium. So let's start for today. The topic is, for today we are going to talk about the indirect recombination via deep energy levels. Dear students, I have told you that if we are talking about the recombination of charge carriers, that recombination is basically of two types, direct recombination and indirect recombination. Direct recombination जो हमने covered कर लिया था, and this is indirect recombination. But you have to focus on that I have written indirect recombination via deep energy levels. If I am considering recombination via this deep energy levels, so how, this is the point to think that how this energy level is formed. A new type of energy level is formed. Dear students, you all know that why we are in need of extrinsic semiconductors. क्यों जरूरत पड़ी हमें extrinsic semiconductors? क्योंकि हमारी needs, हमारे applications जो required थे वो fulfill नहीं हो पा रहे थे while using pure type of semiconductors. That's why वो needs को, उन applications को fulfill करने के लिए हमें जरूरत पड़ी to add some impurities. हम impurities को add करें, and while adding that impurity, we are going to add impurities. That means कि हम उस क्रिस्टल में कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को डोप्ड कर रहे हैं, सो में डैट हमारे पास उस क्रिस्टल की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी वो और जो डोप्ड इंप्योरिटी है, जो डोप्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, वो दोनों कंबाइंड हो सके और हम अपने एप्लीकेशंस का यूज कर सके, अपने एप्लीकेशंस को ले पाए दोनों के प्रॉपर्टीज का यूज करके. क्योंकि अगर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करते हैं, दैट मींस हमारे पास सिंगल प्रॉपर्टी है, तो हमारा फोकस रहता है कि हम दोनों के प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर पाए और उनके कंबाइंड इफेक्ट को अपने जरूरत में ले सके. दैट्स व्हाई वी गो फॉर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने इंप्योरिटीज को डोप्ड किया, सो ड्यू टू दैट डोपिंग or due to the lattice defect एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस. क्योंकि लेट सपोज ये प्योर क्रिस्टल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेन डायग्राम है, जो एनर्जी लेवल्स है, वो डिफाइंड है. और अगर मैं दूसरा क्रिस्टल लेता हूं, लेट मी टेक वन मोर चॉक, अगर मैं ये दूसरा क्रिस्टल लेता हूं, दूसरा एलिमेंट लेता हूं और इसको इसके साथ कंबाइन करता हूं, तो इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी, अब उन प्रॉपर्टीज में ये इसकी भी प्रॉपर्टीज सम अप हो जाएंगी, तो वहां पे नए लेवल का फॉर्मेशन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. आफ्टर इट ऑल it will be more clear to all of us. So let me draw the diagram first. Here we have conduction band, you all know, top band, conduction band, and here we have valence band. Dear students,
this level is basically the level which is here is EC, represented at EC, the top energy level of the if I denote this level with EV, so I will say that this EV is the top energy level of valence band, and what this EC is basically the bottom level of the conduction band. This is what, this is, dear students, conduction band. This is what basically valence band. And if I draw somewhere here a new level, and this is basically represented by EF. This is what? The Fermi level. And dear students, this is the new level, and this is termed as ER. Let me draw free of the electrons here. We all know that if we are talking about the holes, that means कि होल्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में ही हम करते हैं। होल्स की बात हम सिर्फ वैलेंस बैंड में ही करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कंडक्शन बैंड में करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। This is what a hole capture. This is another vacancy. This is what B, electron capture. Electron capture. Dear students, this is the diagram for indirect recombination. I have told you, in this diagram you have seen many of the energy levels. This EC and this EV was old. ये पुराना है, जिसको EV को जिसको हम बोलते हैं कि this is the top of the energy level of the valence band, and this EC is defined as the bottom level of the conduction band. Dear students, this is the another new level which is termed as Fermi level, and this level is basically defined as the center of gravity for this crystal. अगर ये क्रिस्टल मैं अज्यूम करता हूं और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो दैट लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन, विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस फर्मी लेवल. आई होप यू कम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये फर्मी लेवल पे मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, देयर आई विल टेल यू इन डिटेल वे. बट बिफोर इट यू हैव टू नो कि फर्मी लेवल अगर कंडक्शन बैंड के पास है, that dot 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 what I have drawn here and represented by this EF, this is the Fermi level. ये Fermi level अगर इस EC कंडक्शन बैंड के पास है, that means कि जो हम क्रिस्टल एज्यूम किए हैं that is of N type. अगर ये Fermi level is just near this valence energy level, valence band के पास है, that means we are talking about P-type extrinsic semiconductor material. कहने का क्या मतलब है कि जो ये फर्मी एनर्जी लेवल है, ये इस क्रिस्टल का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन बताता है, तो वो लाइन अगर कंडक्शन बैंड के पास है
तो वो एन टाइप का केस है। अगर ये फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास मैंने डॉट डॉट करके यहां बनाया होता, दैट मीन्स कि जो ये क्रिस्टल हम एज्यूम कर रहे हैं ये पी टाइप का केस है। और अगर सेंटर में होता दैट मीन्स कि वो प्योर सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। लेकिन डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो फर्मी लेवल मैंने बनाया वो कंडक्शन बैंड के पास है, दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर बाय दिस, क्योंकि अगर फर्मी लेवल में न रिप्रेजेंट करूं तो आप जज नहीं कर पाओगे वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप। फर्मी लेवल से इसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि फर्मी लेवल मैंने यहां बनाया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एन टाइप चार्ज कैरियर्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। सो मैंने आपको बताया कि यहां पे एक नया लेवल क्रिएट हुआ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई आर, एंड दिस ई आर, डियर स्टूडेंट, दिस ई आर इज recombination level. Let me write here, this ER is what? Recombination level. What happens? मैंने आपको बताया ये लेवल कैसे क्रिएट हुआ। ये तो जनरल फर्मी लेवल तो जनरल लेवल है। ये ER जो नया लेवल क्रिएट होता है दिट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज और ड्यू टू द लैटिस डिफेक्ट। लैटिस में अगर कोई डिफेक्ट है एंड दैट डिफेक्ट विल बी, क्योंकि जब हमने इम्प्योरिटीज को डोप्ड किया, देयर वाज नो डिफेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सेमीकंडक्टर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिफेक्ट्स इन दैट लैटिस, क्योंकि हमने अदर टाइप के, अदर नेचर, अदर बिहेवियर के एलिमेंट्स को हमने उस क्रिस्टल में डोप्ड किया है। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे आएंगे, and that changes, that defect is basically represented by this ER, and this energy level is nothing but the deep energy level. What happens here in indirect recombination? Basically the hole capture is followed by the electron capture. This is a two-step process. यहाँ पे ड्यूरिंग जनरेशन हमने बात किया था कि देयर इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है इन जनरेशन, बट इन रिकॉम्बिनेशन वी से कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिसिंग होते हैं, इनका मिसिंग होता है, इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ था वो ड्यूरिंग जनरेशन हुआ था, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन वापस होल्स के साथ रिकम्बाइंड हो जाता है, एंड दैट इज वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिसिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हम जनरेशन में बात करते हैं, और मिसिंग की बात करते हैं तो रिकम्बिनेशन में बात करते हैं। एंड व्हाट वी फाउंड कि जब कैरियर्स का रिकम्बिनेशन हो रहा है वो डायरेक्टली ना होके इस एनर्जी लेवल के थ्रू हो रहा है, वो इनडायरेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन, and that indirect recombination is basically followed with two steps: hole capture followed by this electron capture. Dear students, in this I have told you this is a two-fold process. Hole capture is followed by this electron capture. That means कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जब रिकम्बाइंड होता है। उस स्टेप को याद करेंगे कि जब कैरियर जनरेट हुए थे और एनर्जी वो लूज करता है, और लूज करने के बाद वापस वो रिकम्बाइंड के लिए फॉल करता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है उस दौरान वो ट्रैप्ड हो जाता है एक एनर्जी लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे, एक ट्रांजिशन लेवल पे, एंड दैट लेवल इज बेसिकली रिकम्बिनेशन लेवल ER। वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हुए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल करते हैं इस वैलेंस बैंड में, और आइदर वे वी कैन से कि यहां जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ था डियर स्टूडेंट्स, तो जब वो फ्री हुआ था तो वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, एंड देयर वाज अ वैकेंसी क्रिएटेड, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पे वैलेंस बैंड में, और वो उसी वैकेंसी को हम कहते हैं कि होल्स है। तो वो होल्स
यहां पे मूव करते हैं और इन टर्न इलेक्ट्रॉन यहां वापस आ जाता है। तो ड्यूरिंग दिस जंप, इस जंप के दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन, चाहे मैं कहूं कि होल्स यहां से इस लेवल पे गया या इलेक्ट्रॉन इस लेवल से गया, लेकिन हम इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स ना हो इस वजह से दो स्टेप्स में तोड़ देते हैं। एंड फर्स्ट इज कॉल्ड होल कैप्चर, दैट मीन्स दिस होल विल बी कैप्चर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, so this vacancy will be moved here in this energy level. So this was about the hole capture, and this hole capture is followed by this electron capture. अब ये जो वैकेंसी थी वैलेंस बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया, तो मैं डायरेक्शन अगर इधर करता दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, या मैं उसके अपोजिट मूव करूं दैट मीन्स ये होल मूव करके यहाँ जा रहा है, और यही वैकेंसी को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे जब ये वैकेंसी पहुंचती है, जब ये होल पहुंचता है, तो अगेन दिस इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो फॉल करता है डाउनवर्ड्स इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, इस एनर्जी लेवल पे ट्रैप्ड रहा, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया इस वैलेंस बैंड में, और फाइनली इस वैलेंस बैंड में आके वो रिकम्बाइंड हो जाता है। And at that instant we say electron hole pair का missing. So this indirect recombination is, I have told you, this is a two-step process. A, hole capture, and B, electron capture. I am going to repeat it again. मैंने बताया इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड होंगे इन होल्स के साथ। मैंने बताया होल्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ वैलेंस बैंड में होगी, कंडक्शन बैंड में कभी भी हम होल्स की बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन में करते हैं, कभी भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात वैलेंस बैंड में नहीं करते हैं। टू थिंग्स शुड ऑलवेज बी क्लियर इन योर माइंड। तो हमने देखा कि ये एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया, क्यों? इट वॉज ड्यू टू द इम्प्योरिटी और ड्यू टू द लैटिस डिफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड है। दिस इज द सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, क्योंकि वो जब फॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी लेवल पे उनकी एग्जिस्टेंस होती है कुछ समय के लिए। फिर क्या होता है कि रिकम्बिनेशन में हमें एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं होल्स के साथ आके रिकम्बाइंड होगा। तो उसी को हमने दो स्टेप में समझना है। फर्स्ट इज होल कैप्चर। इस होल कैप्चर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहाँ अवेलेबल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वैलेंस बैंड के होल्स के साथ, और यहाँ आके इनका रिकम्बिनेशन हो जाता है। और मैंने बताया था कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स जब भी रिकम्बाइंड होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस होल्स के साथ रिकम्बाइंड होगा, देयर विल ऑलवेज एनर्जी विल बी लिबरेटेड। HNU के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होगी, और ये चूंकि इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन है, दैट मीन्स कि जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और डिस्कसिंग द डायरेक्ट रिकम्बिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन। तो इस रिकम्बिनेशन के दौरान, इस फर्स्ट पार्ट में होल कैप्चर में, जो कि इलेक्ट्रॉन इस होल को कैप्चर कर रहा है, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज इन द लैटिस इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगेन जो यहाँ होल पहले यहाँ था, वो होल अब यहाँ आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे अगेन दैट इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैकेंसी। उस वैकेंसी को, जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस उस होल को रिकम्बाइन करते हैं, उस वैकेंसी को ऑक्युपाई करते हैं। एंड अगेन वी से ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गया तो इट विल लूज सम एनर्जी। डाउनवर्ड्स फॉल होना, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी
गेन करके अपवर्ड मूव कर रहा है, और जब डाउनवर्ड्स फॉल होगा दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी से वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में गया था, वही एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करेगा। एंड व्हाइल दैट इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो रिलीज करेगा। सो दिस इज बेसिकली होल कैप्चर एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और सिंपली वी से इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन। और हमें पता है कि ड्यूरिंग इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी रिलीज विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होगी। सो वन मोर थिंग हियर, ट्रैपिंग सेंटर। ट्रैपिंग सिंपली एक टर्म इसमें यूज होता है इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन में, ट्रैपिंग। और इसी के साथ हम ट्रैपिंग को यूज करते हैं सिंपली वी से टेम्परोरी ट्रैपिंग, टेम्परोरी ट्रैपिंग। जनरली ट्रैपिंग टर्म यूज होता है इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन में। व्हाट हैपेंड इन दिस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन वो कुछ इंस्टेंट के लिए ट्रैप्ड हो जाते हैं इस रिकॉम्बिनेशन लेवल पे, एंड अगेन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेन री-एक्साइटेड, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल से जंप करके कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं। व्हाई वी आर इन नीड ऑफ री-एक्साइटेशन, क्यों हम री-एक्साइट करते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू कि वी आर इन नीड ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें n चाहिए मैक्सिमम, एंड दिस n इज concentration of free electrons, because we all know that free electrons will only responsible for the conduction or the flow of current। और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जब होंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो उनसे हम एप्लीकेशन नहीं लेना, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्री करके इस कंडक्शन बैंड में लाना है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां होते हैं दोज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and that free electrons are only responsible for the conductivity or the flow of current। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स, एक्सेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे पास हो। फॉर दैट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। तो वंस द चार्ज कैरियर्स आर फ्री, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो यहां से जब इस स्टेट में जाते हैं तो नो डाउट उनकी एनर्जी हाई होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी एनर्जी ड्यू टू कोलिजन होने की वजह से वो एनर्जी लूज करते हैं, और लूज करने के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और जब वो कंडक्शन बैंड से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ड्यूरिंग दैट रिकॉम्बिनेशन व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिसिंग, ड्यूरिंग दैट रिकॉम्बिनेशन दोज इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रैप्ड हियर, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड ट्रैपिंग। वो ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि एक एनर्जी लेवल यहां भी एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी और ड्यू टू द लैटिस डिफेक्ट। अब वो यहां पे तब तक ट्रैप्ड रहते हैं जब तक हम उनको वापस री एक्साइट ना करें, जब तक उनको हम री एक्साइट ना करें। री एक्साइट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एंड आफ्टर री एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करते हैं अगेन दे लूज देयर एनर्जी, एंड since it is an indirect recombination the energy will be released in the form of heat। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से जंप करके डायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो आके इन होल्स के साथ रिकम्बाइंड हो जाएं, लेकिन यहां लेवल पहले से एग्जिस्ट होने की वजह से वो यहां पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, और ये इनकी ट्रैपिंग कुछ इंस्टेंट तक रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हुआ फिर वापस यहाँ पे पहुंचा, री एक्साइट होने के बाद फिर वो डायरेक्टली हो जाएगा। हो सकता है वो यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचा, फिर अगेन वापस यहाँ जंप किया, फिर से वो ट्रैप्ड हो जाए, फिर से वो जंप करे, फिर से वो ट्रैप्ड हो जाए। वी कांट से, एंड दैट इज द रीजन डियर स्टूडेंट्स it become quite tough to calculate the carrier lifetime for indirect recombination। जिस प्रकार से हमने डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट किया था वो हमारे लिए थोड़ा सा सीन टफ हो जाता है to calculate the carrier lifetime for this indirect recombination, क्योंकि उनकी ट्रैपिंग कितनी बार होगी, कब तक होगी, we can't say, हम नहीं कह सकते, we can't estimate, we can't calculate। और इस वजह से जो
टाउ की कैलकुलेशन होती है इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन के लिए, दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और दैट बिकम्स टफ। तो जो कैरियर्स यहां पे होल्ड होते हैं या जो कैरियर्स ट्रैप्ड होते हैं, दोज आर कॉल्ड टेम्पोररी ट्रैपिंग। वो टेम्पोररी ट्रैपिंग होती है, परमानेंटली ट्रैप्ड नहीं होते हैं। कुछ इंस्टेंट तक वो ट्रैप्ड होंगे नो डाउट, लेकिन आफ्टर फ्यू इंस्टेंट, आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद उनको वापस यहाँ पे रिकम्बाइंड होना ही होना है, वो रिकम्बाइंड हो जाएंगे। अगर वो कम एनर्जी रिलीज किए तो नो डाउट वो यहाँ पे ट्रैप्ड होंगे, अगर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे दैट मीन्स वो सीधे आके रिकम्बाइंड हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो ये रिकम्बिनेशन एनर्जी लेवल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड recombination center, recombination center. This is also termed as the center where the carriers are hold for a while, कुछ समय के लिए जहां पे जो सेंटर पे जो कैरियर्स कुछ इंस्टेंट के लिए होल्ड हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स वाया डीप एनर्जी लेवल्स। तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि जो डीप एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल कैसे क्रिएट हुआ है। दैट इज ड्यू टू द impurity, that is due to the impurity or lattice defect in the semiconductor crystal। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में उस डिफेक्ट वजह से ऑटोमेटिकली ये लेवल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो कैरियर्स ट्रैप्ड होते हैं वो टेम्पोररी ट्रैप्ड होते हैं, नॉट परमानेंटली। परमानेंटली तो वो वैलेंस बैंड में आके रिकम्बाइन होने के बाद ही ट्रैप्ड होते हैं। And dear students, this is the indirect recombination. You need not to confuse कि जो एनर्जी रिलीज्ड होगी during recombination that will be in the form of light. No, that energy, if directly carriers are going to combine, the only case where the energy released will be in the form of light. This is the indirect recombination. Directly band to band transition नहीं हो रहा है, किसी लेवल के जाने के बाद ही वो यहाँ पे recombined हो रहा है. So this becomes the case of indirect recombination. And in the last, you have to also remember that if you are going to calculate the tau for these charge carriers, for this indirect recombination type of charge carriers, अगर आप tau calculate करते हैं तो that will become quite tough, क्योंकि कब तक वो carriers trapped रहेंगे we can't say. So dear students, this is all about indirect recombination. I hope what I have taught you while drawing this diagram or the term which I have used to come to understand. If you have any doubt, you can ask directly to me without any hesitation. So thank you so much students for today. I hope you will take care of yourself. Thank you dear.